Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. Good morning, students. We are continuing with the lesson, that is lesson 2 of civics. Okay. And today we will try to understand why is it important to separate religion from state. Okay. We know that for a country to function democratically, जब हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है और यहाँ पे हर किसी को जो है समान अधिकार है, everyone is having the same rights. Okay, for a country to function democratically, it is important to separate religion from the state. Okay, this is the main motive behind separating religion from state. And now let us try to understand what are there are mainly four main reasons. Okay, there are four reasons why we separate religion from state. Okay, the first one we have told, for a country to function democratically, it is important to separate religion from the state. Now the second reason is what? It protects the individuals. अब अगर हम इस चीज को लेते हैं, पहले वाले को पॉइंट को, फॉर द इफ यू टेक अप द फर्स्ट पॉइंट, फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट ओके रिलीजन फ्रॉम स्टेट. Religion from state. Now supposing we are talking about democracy and we say that in democracy every person has one right and the basic right is the right to vote. Okay, ek vyakti ek mat. In democracy we see that under universal adult franchise every citizen has the right to vote, the right to elect his representatives. Okay, now if we are not separating religion from a state, what will happen? Okay, if there is a dominant group, there is a dominant religious community and a person belonging to that dominant community, okay, tries to invoke all his policies, all his doctrines on the citizens of the country, what will happen? Okay, he may influence the election procedure. So in order for the country to function democratically, it is important to separate religion from state. Okay, now the second point, to protect. Okay, we see that it protects the individuals when we separate religion from a state. Okay, there is a protection taking place. It protects the freedom of individuals. हम लोग एक ही धर्म में हैं, ओके, लेकिन अगर हमें ये आजादी नहीं होगी कि हम अपने धर्म को अपने हिसाब से उसका अनुसरण करें, तो ये गलत होगा. ओके, एक ही रिलीजियस कम्युनिटी में जो है कुछ लोग जो है वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो इस डोमिनेशन से बचाने के लिए भी जो है रिलीजन को स्टेट से अलग रखना अनिवार्य है. इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके, टू exit from their religion and embrace another religion. Okay, embrace another religion. Whenever we study topics related to the religious feelings or the communal feelings of the people,
वी मेक इट अ पॉइंट नॉट टू हर्ट द फीलिंग्स. ओके, हमारा उद्देश्य जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य बस तथ्यों को सामने लाना है. तो अगर हम देखते हैं कि हम हम पैदा हो रहे हैं और हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता किसी धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, हमसे भी कहा जा रहा है कि हम उस धर्म का अनुसरण करें, लेकिन हमें लगता है कि हमें अपने धर्म को हम उस धर्म में जो है अपने आप को फ्री नहीं महसूस करते हैं. अपने आप को जो है हमें लगता है कि हमें जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए. ओके, तो ऐसे केसेस में जो है हमें आजादी है, हम अपने जो पहला जिस धर्म को जो हमारे माता पिता फॉलो कर रहे हैं उसको हम छोड़ के जो है दूसरे धर्म को अपना सकते हैं. ओके, and it is possible only because we in our country the religion is kept separate from the state. Okay, it is only possible because of that. Now as far as the third reason is concerned, we see that it protects the interest of the minorities. When religion is separated from state, we see it protects the interest of the minorities. Interests of the minorities. As I have told you, our country is a Hindu dominated country. In our country, the majority of the citizens are Hindu. Okay, but we see that there is religious harmony in our country. The minorities like the Muslims, the Sikhs, the Christians, and people following other religions, okay, they are given equal right. They are given equal right, and it is possible because our country is a secular state. हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए जो है हम देखते हैं कि हमारे देश में जो है ओके जो बहुसंख्यक समुदाय है, ओके, द मेजॉरिटी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय को डोमिनेट नहीं कर पाती है. ठीक है ना. अगर ऐसा नहीं होता, अगर रिलीजन को हम स्टेट से सेपरेट नहीं करते तो क्या होता, जो रिलीजियस कम्युनिटी जो डोमिनेंट है, मतलब जो मेजॉरिटी में है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो क्या करेगी, वो अल्पसंख्यक समुदाय को जो है डोमिनेट करने की कोशिश करेगी. जैसे कि हमने देखा इन द केस ऑफ इजराइल. In the case of Israel, what we saw that 81% they were Jews, okay, and 19% they were non-Jews. That is they were non-Muslims and Christians. And these non-Muslims and Christians, they are being excluded. They are being dominated by the 81% Jews. But it is not so in our country. Okay, so whenever we study a topic, we try to do a comparative study. Now the last point. Let us try to understand the last point. As far as the last point is concerned, we see that it protects public power from the influence of religious institutions in public office. Okay. Now if we take the case of RSS, अगर हम अपने देश में जो है RSS का जिक्र करते हैं, if we take the case of RSS in our country, that is what is the full form of RSS? Who will tell me? RSS का full form क्या है? Anybody? Full form of RSS? हाँ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक. आपके पापा बताएं, आप नहीं बताए हो. Whoever is telling, it is your father, I think, who has told you. Okay? Yes. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. Okay? Yes, ma'am. Okay, this is the full form of RSS.
and we see that मैम the हाँ बेटा मैम एक बार और बता दीजिए कि मैम स्टेट को रिलीजन से क्यों अलग करना जरूरी है? वही तो बता रहे हैं बेटा, एक एक करके 4 पॉइंट्स आपको बता दिए। I am explaining that part only, why it is important to separate religion from state. 3 points I have explained, I am explaining the 4th point. Okay, pay attention, ध्यान दीजिए। Okay, so we see that RSS, the full form of RSS is Rashtriya Swayamsevak Sangh. Okay, and we see that in our country, the Bharatiya Janata Party, the BJP, it is okay. Some way or the other, it is influenced by the RSS. Okay, and if we see that in our country, though the Hindus, they are in majority, and if these Hindus, अगर हम देखेंगे कि हमारे देश में जो हिंदू है वो बहुसंख्यक समुदाय है, the Hindus are in majority, and if in our country we see that these Hindus, okay, if the majority religious groups, अगर हम देखते हैं कि ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है हमारे देश में, मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप कौन है? द हिंदूज. ओके, if the majority religious groups, the Hindus, okay, they are allowed, okay, they have access to state power, what they will do? They will try to misuse this power. अगर इनको एक्सेस मिल जाता है, ओके, सत्ता जो देश की जो सत्ता है उसको जो है इनके हाथ में उसका जो है बागडोर अगर दे दिया जाता है तो ये क्या करेंगे? ये उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है हमारे देश में क्या किया गया है? ओके, in order to protect the tyranny of the majority institutions, okay, in order to protect the tyranny, okay, of the majority, ये जो बहुसंख्यक समुदाय है इसके डोमिनेशन से बचाने के लिए, जो माइनॉरिटीज हैं, और सत्ता का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए जो है धर्म को राष्ट्र से अलग रखा गया है. ओके, religion is kept separate from state. It is kept separate from state. ओके, जब हम कहते हैं कि हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में किसी भी धर्म को जो है राष्ट्र धर्म घोषित नहीं किया गया. In our country we have not declared any religion as the official religion of the state. और जब हम किसी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं then how can the Hindus, they can have access to state power, and how can they try to dominate the Sikh, the Muslims, okay, the Christians, the Buddhists, the Jains, okay, the different religious groups that are residing in our country. Okay, so we see that it protects when we separate religion. जब हम धर्म को राष्ट्र से अलग रखते हैं तो जो पब्लिक पावर है उसको जो है इन जो धार्मिक जो अनुष्ठान है इनके प्रभाव से बचाया जा सकता है. तो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि हमारे धार्मिक जो अनुष्ठान है वो किसी भी प्रकार से जो है हमारे जो पब्लिक पावर है उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा देश जो है वो एक सेकुलर स्टेट है. अंडरस्टूड? Since our country is a secular country, okay, the religious institutions, they are no way trying to, okay, they are no way able to influence the public power. जो लोग सत्ता में आते हैं वो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा करेंगे तो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग जो हैं वो इसका विरोध करने लगते हैं. ओके, और जो सरकार है उसको उनकी बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज इट इज आवर फंडामेंटल राइट. It is one of our fundamental rights, the right to freedom of religion. ये हमारा मौलिक अधिकार है.
और ये हमसे कोई नहीं ले सकता है। तो कोई ना तो अपना धार्मिक जो फीलिंग है, धार्मिक जो उसकी जो सिद्धांत है वो हम पे थोप सकता है, और ना ही हमें अपने धर्म को अपने अनुसार जो है अनुसरण करने से हमें कोई रोक सकता है। ओके, सो it is the basic, the essence of our Indian secularism is that we have kept religion separate from state. ठीक है, तो हमारे देश में जो है हमने जो है धर्म को जो है राष्ट्र से जो है अलग रखा है इसी कारण। Now let us try to understand what is Indian secularism. When you go through the book, you will see what is Indian secularism. As far as the Indian secularism is concerned, what is Indian secularism? जब हम कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। ओके, द वर्ड सेकुलरिज्म मीन्स धर्मनिरपेक्षता। Now, what is Indian secularism? We see that the Indian Constitution mandates that the Indian state shall be secular. The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. Now, what does it mean? It means that, okay, according to the Constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. जब हम कहते हैं कि हमारा भारतीय संविधान मैंडेट करता है, ये कहता है कि हमारा राष्ट्र जो है वो सेकुलर होगा, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, what is the main objective behind it? Okay, its objective is that one religious community does not dominate the other. One religious community, एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को ओके डोमिनेट नहीं कर सकती है। वन रिलीजियस कम्युनिटी ओके कैन नॉट डोमिनेट अनदर। ओके, अब मान लीजिए दो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, सपोजिंग दिस इज वन रिलीजियस कम्युनिटी ए एंड दिस इज वन रिलीजियस कम्युनिटी बी। ओके, now what we see is that time and again this A is trying to impose its policies on B. It is not possible. When we say our country is secular, it is not possible. जितना अधिकार A को है उतना ही अधिकार B को भी है। Okay, so we see that in such a case the B can complain against A that it is trying to dominate it. Okay, when we say that we have freedom of religion, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई हम पे अपनी नीतियों को, अपने धार्मिक नीतियों को थोपने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे और सरकार जो है हमारी कंप्लेन को फॉलो करेगी। ठीक है ना, एंड वी विल गेट जस्टिस। ना अगर हम देख ले रहे हैं कि ए में जो है बहुत सारे मेंबर्स हैं, ए जो है इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और बी जो है इसमें बहुत कम मेंबर्स हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया माइनॉरिटी का, ये अल्पसंख्यक समुदाय हो गया बी, और ये ए जो है ये मेजॉरिटी हो गया, बहुसंख्यक समुदाय हो गया। अब चूंकि इसके सदस्य ज्यादा है तो ये अपने सिद्धांतों को, अपनी नीतियों को बी के ऊपर थोप नहीं सकता है। ओके, बिकॉज B2 has the same right as A has. Okay, and it is possible because in our country we have kept religion separate from state. अगर हम religion को state से अलग नहीं रखेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, बहुसंख्यक समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय को डोमिनेट करेगी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में सत्ता रहेगी, वो जैसे चाहेगी वैसे जो है बहुसंख्यक समुदाय के साथ कर सकती है।
It can not allow the minority to be a part of the decision making process. अगर ऐसा होता है, अगर हम सेकुलर स्टेट को सेकुलर नहीं रखते हैं, अगर हम धर्म को राष्ट्र से अलग नहीं रखते हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति ओके मान लीजिए वो हिंदू धर्म को बिलोंग करता है, अगर वो सत्ता में आता है तो हर जगह जो है वो हिंदुत्व का प्रचार करना शुरू कर देगा. ओके ऐसे में जो बहु अल्पसंख्यक समुदाय है उसको क्या होगा, उसको दिक्कत होने लगेगी, उसको जो है इसके अनुसार जो है चलना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत है. ठीक है ना. तो इसीलिए जो है हम देखते हैं कि हमारे देश में धर्म को राष्ट्र से अलग रखा गया है, ताकि ये ना हो सके जो बहुसंख्यक समुदाय है अल्पसंख्यक समुदाय को डोमिनेट न कर सके. इसीलिए जो है ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड, if you will be able to understand, it is very simple. Now the second one, okay, एक ही समुदाय के लोग, okay, some members do not dominate other members of the same religious community. Okay, some members do not dominate the other members. ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है. अगर एक ग्रुप के जो मेंबर्स ज्यादा हैं और दूसरे के कम हैं तो some members do not dominate the other members of the same community. Okay, so the first point is clear. Now let us try to understand the second point. Some members do not dominate the other members of the same community. मान लीजिए हम हिंदू धर्म को ही ले रहे हैं और हिंदू धर्म में ही हम देख रहे हैं क्या, हिंदू धर्म में ही हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं उनके पास जो है they have economic power, they have wealth, okay, and what they try to do, these people they try to impose their beliefs on okay the people belonging to the, मान लीजिए हम जो हायर कास्ट के लोग हो गए, हायर कास्ट हो गए, हम अपने हिंदू धर्म को लेते हैं. ओके वी सी दैट इन द हिंदुइज्म व्हाट वी सी दैट हमारे हिंदू धर्म में जो है छुआछूत का जो है एक प्रथा चलते आ रही थी सदियों से, अभी भी कुछ हद तक है. तो हम देखते हैं कि जो एक ही समुदाय के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जो लोअर कास्ट हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, अनटचेबिलिटी उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं. तो ये क्या है, ये निंदनीय है. ओके ये दंडनीय है और इसको जो है इसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके तो जब ऐसा कब होगा, ऐसा उस वक्त होगा जब हम राष्ट्र को धर्म से अलग नहीं रखेंगे. तो जो बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे, जो निचले जात के लोग हैं उनके साथ जो है ऐसा करना शुरू कर देंगे, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे. बट इट इज नॉट पॉसिबल इन आवर कंट्री. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज अंडर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस. ओके अगर हम देख रहे हैं अपने देश में तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 17 स्टेट्स दैट untouchability is a punishable offense. ओके अनटचेबिलिटी को जो है हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. छुआछूत अगर कोई प्रैक्टिस करता है हमारे देश में ओके तो उसको जो है सजा होगी. अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस. नोबडी कैन ओके प्रैक्टिस इट. When you will go through the later chapters, you will try to understand this. Okay, how untouchability was practiced in our country. So article 17 states that untouchability is a punishable offense. Okay, तो एक ही समुदाय हमारे हिंदू समुदाय में ही जो है बार बार आप कहेंगे कि मैम जो है हिंदू ही समुदाय को क्यों ले रही हैं, बाकी कास्ट को क्यों नहीं ले रही हैं. बाकी कास्ट में भी होता है, बट आई नो अबाउट माय रिलीजन ओके बिकॉज आई एम अ हिंदू. सो मैंने जो
बचपन से जो एक्सपीरियंस किया है अपने धर्म में, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. रियल लाइफ एग्जांपल्स आर गिवन इन एसएसटी. So I see that untouchability is practiced in Hinduism, and this untouchability has been declared a punishable offense by the Indian Constitution under Article 17. Now let us try to understand the third point. The state does not enforce any particular religion, not take away the religious freedom of individuals. The state does not promote any particular religion, okay? The state is not promoting any particular religion, nor take away the religious freedoms of individuals, nor take away the religious feelings of religious freedom of others. Okay, so we see that, okay, one of the main objectives behind separating religion from state, or one of the main objectives behind making our country a secular state is this, that the state is not promoting any particular religion. अगर हमारा राष्ट्र जो है एक सेकुलर राष्ट्र नहीं होता, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं होता, तो क्या होता, हम किसी एक धर्म को प्रमोट करते हैं और बाकी धर्मों के जो भावनाएं हैं, उनके जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, उनके जो आइडियोलॉजीज हैं, उसको जो है ठेस पहुंचती. ठीक है ना. तो हम देखते हैं कि इन आवर कंट्री द स्टेट इज नॉट प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड नाइदर इट इज टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. हमारे देश में जो है किसी भी नागरिक की जो है आजादी जो है नहीं छीनी जाती है. हम देखते हैं कि हमारे हिंदू समुदाय में ही जो है बहुत सारे जो है, अगर आप देखेंगे शुरू से ही हमारा इतिहास देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो दलित समुदाय के लोग हैं, द पीपल बिलोंगिंग टू द दलित कम्युनिटी, when Christianity was introduced in our country, when the Britishers they came to our country and they introduced Christianity, what we saw that the lower caste, okay, the lower caste people, they were not treated properly by the people belonging to the higher caste. So what they did, they converted their religion. बहुत सारे जो हिंदू समुदाय के जो लोग थे, जो निचले वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने जो है ईसाई धर्म को अपना लिया. वो लोग बैप्टाइज करके जो है अपने आप को जो है क्रिश्चियन बना लेते हैं. और हम देखेंगे, जब हम अपने इतिहास को देखेंगे तो हम देखेंगे कि द क्रिश्चियन मिशनरीज वेर प्रमोटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिशर्स, एंड द पीपल हु वर बीइंग treated very badly by the higher caste, they converted to Christianity. बहुत सारा जो है हमारे देश में कन्वर्शन हुआ क्रिश्चियनिटी में, फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी. ओके, एंड इट इज पॉसिबल. व्हाई इट इज पॉसिबल? व्हाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज आवर कंट्री इज अ सेकुलर स्टेट. स्टिल ये तो ब्रिटिशर्स के समय का बात थी. आप कहोगे कि मैम ब्रिटिशर्स जो है वो अलाउ कर दिए थे इसीलिए हो गया. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप देखेंगे कि तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकुलर शब्द है, ओके, द वर्ड सेकुलर वाज इनकॉर्पोरेटेड. इसको हमने अपने प्रीएम्बल में कब इनकॉर्पोरेट किया था? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हेन वाज द वर्ड सेकुलर इनकॉर्पोरेटेड? मुस्कान, सेकुलर शब्द हमने अपने प्रीएम्बल में कब लिया था? Under which amendment? The word secular was incorporated in our preamble under which constitutional amendment? Ma'am, 42. कब हुआ था 42nd amendment? What was the year? 42. हाँ? 1976. Yes. The word secular was incorporated. We see that the word secular was incorporated in the preamble. In the preamble, preamble is the introductory part, by the 42nd amendment. By the 42nd
constitutional amendment. आई हमको जबले चलो तबले Hey, stop speaking भोजपुरी. 1976. ओके, तो देखते हैं कि 1976 में जो है, ओके, this word was amendment under the, I think it is 6. Times I get confused. Okay. So we see that the word secular was incorporated in the preamble by the 32nd Constitutional Amendment 1976. अब इसके तहत जो हम देखते हैं कि there is, okay, it means when we say our country is a secular state, our country is a secular state. What does it mean? Our country is a secular state. It means that there is no official state religion. हमारे देश में जो है, जब हमसे पूछा जाएगा कि हम कहते हैं कि हमारा देश जो है, ओके, हम कहेंगे, जब हमसे पूछा जाएगा कि हमारा सेकुलर स्टेट क्यों है, तो हम कहेंगे कि ये इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो है कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ओके, देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन. कोई भी जो है ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हमारे देश में नहीं है. It means that there is no official state religion in our country. In our country, all the individuals have freedom. हर व्यक्ति को हमारे देश में आजादी है. Freedom to follow religion of their choice. हर किसी को आजादी है अपने धर्म को अपने अनुसार फॉलो करने की, अनुसरण करने की और उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने की. हर धर्म में जो है कुछ कमियां हैं, हर धर्म में जो है कोई ना कोई कमी है. ओके, तो हमें ये आजादी है कि हम उस कमी को नकारते हुए अपने धर्म का अनुसरण करें. ओके, we have the authority, we have the freedom to interpret our law. जब हम कहते हैं कि interpret the religion, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरप्रेट करने का मतलब क्या हुआ? अपने ही धर्म को अपने अनुसार अनुसरण करना. ओके, जैसे कि हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि बहुत सारी रूढ़िवादियां हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं जिसका हमारे माता पिता हमसे अनुसरण करवाते हैं. ओके, अगर हमें लगता है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं वो किसी को ठेस पहुंचाती हैं, किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को ठेस पहुंचाती हैं, किसी को इंफीरियर फील कराती हैं, तो हम उसमें बदलाव ला सकते हैं. किसके लिए? अपनी बेहतरी के लिए और सामने वाले के प्रमोशन के लिए. ठीक है ना? सामने वाले के लिए भी उसके बेहतरी के लिए भी और अपनी बेहतरी के लिए भी. ओके, in my next class I will be teaching you, explaining you the system that is being practiced in US and France. So try to go through it. Okay, in the further chapters you will see some illustration has been given related to United States of America and France. Okay, ओके मैम. अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपके जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है आप देखेंगे. देयर इज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस